बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम द ब्लैंक पेज ऑफिशियल में आपको खुशामदीद कहते हैं। अगर आप नए हैं इस चैनल पर तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। इंडिया के एक बड़े मशहूर डिफेंस एनालिस्ट हैं मेजर जनरल एस बी अस्थाना साहब। इन्होंने पिछले दिनों एक अजब सा बयान दिया है कि पाकिस्तान पे कैसे कब्जा किया जाए। पाकिस्तान का जो गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर का इलाका है उनके ऊपर कैसे चढ़ाई की जाए और कब चढ़ाई की जाए, इस पे उन्होंने अपने ख्यालात का इजहार करते हुए कहा कि इसके लिए 3 चीज़ें चाहिए। पहली चीज़ हमें ये चाहिए और ये सबसे इम्पॉर्टेंट है कि एक सही किस्म का मिलिट्री बैलेंस होना चाहिए, यानी कि हमें ऐसी फोर्स बनानी चाहिए जो कि रिक्वायर्ड रेशो में हमें अवेलेबल हो वहाँ पर डिप्लॉय करने के लिए भी और एग्जिस्टिंग जो बॉर्डर्स हमारे होंगे उनको सेफ गार्ड करने के लिए भी। दूसरी चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट उन्होंने की है और ये मैं बड़ा हैरान हुआ देख के। वो कहते हैं कि जब तक वहाँ की पब्लिक हमारे साथ नहीं होगी हम ऐसा नहीं कर सकते, तो हमें एक मुजीबुर रहमान वहाँ पर चाहिए। मुजीबुर रहमान जैसी हमें एक क़यादत चाहिए, वहाँ पर लोकल लीडरशिप चाहिए जो कि पॉपुलर हो और एंटी पाकिस्तान सेंटीमेंट्स वहाँ पर उभार सके और वहाँ के पब्लिक को इंडिया की फेवर में जो है वो उनका माइंड बना सके, पाकिस्तान के ख़िलाफ़ प्रो इंडिया उनको कर सके। ये इंपॉर्टेंट बात उन्होंने की है, यानी कि सोशल री इंजीनियरिंग की बात कर रहे हैं कि वहाँ की जो आवाम प्रो पाकिस्तान है उसको एंटी पाकिस्तान बनाने के लिए कोई ऐसी हमें कोई लीडरशिप वहाँ पर चाहिए। और तीसरी बात उन्होंने ये की कि आलमी जो हालात हैं वो हमारे फेवर में होने चाहिए। जब तक ये 3 चीज़ें नहीं होंगी, अस्थाना साहब समझते हैं कि हम तब तक आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर पे और गिलगित पे कब्जा नहीं कर सकते, उसको इन्वेड नहीं कर सकते। पहले आप ज़रा उनकी एक क्लिप सुने, उसके बाद मैं बात करता हूँ कि इन्होंने ये जो बोंगी मारी है ये प्रैक्टिकल क्यों नहीं है। As Pakistan continues to flip-flop in making peace gestures to India, one question is often asked: when are we going to get back the territory which is an illegal occupation of Pakistan as per instrument of accession, which was signed to give the entire possession of Jammu and Kashmir to us? There have been some authentic voices made, but let me answer today as an analyst as to how and when it can be done. Firstly, coming on to how it can be done, there are 3 preconditions. The first one is that we have to have a military capacity building good enough to be able to put in the required force ratio at the place of application. For that, of course, Make in India, Atmanirbhar Bharat, some more budgeting, all these actions are being taken. The second is that the population of that area has to be in favor of India and has to be fairly troubled by Pakistanis, which is happening, as well as the Chinese who are making intrusions there. So therefore, a dissatisfied population led by an able leader, like it happened in 1971 war, wherein in East Pakistan, under the leadership of Sheikh Mujibur Rahman, the discontent of population actually gave a momentum. The third condition is the international opinion has to be in Indian favor. Now, as Chinese intrude more and expand more and occupy more Pakistani territory, I think the international favor will perhaps swing in favor of India. Once these preconditions are met, then only a call can be taken by the political leadership and the decision makers of that time, whenever the call is taken, to be able to apply these forces after striking the right balance in all these factors. Now the question is when it can be done. If it is attempted prematurely, then it has higher chances of risk.
if it is attempted too late, then a change in demography is in progress in Pakistan and in all these areas, Gilgit-Baltistan, POK, as well as Shaksgam Valley. Chinese intrusion is also in progress, and therefore at some point of time perhaps the demography may not have that kind of passion to join back India, number one. And number two, the Chinese factor, this number of Chinese there will put in a different dimension to this entire exercise. So therefore there is a fine balance. You can't be too late, you can't be too early, and therefore the decision maker of that time will have to see as to what is the appropriate time when these factors are matching up and can be balanced. Till then, India must ensure that this claim is maintained. We do not accept CPEC and should not do so. And I am very sure that at some point of time, when we have the comprehensive national power and when all these factors and preconditions which I mentioned are in our favor, I think that is the time when a call can be taken and the things can be put in practice by the decision makers of that time. अच्छा जी, अब ये आपने उनकी बातें सुनी। अब देखिए अस्थाना साहब को मैं ये बताना चाहूँगा कि ये जो बात कर रहे हैं ना कि डिसीजन जो कब्जा करने का है वो ज़्यादा लेट भी नहीं होना चाहिए, ज़्यादा जल्दी भी नहीं होना चाहिए, फाइन बैलेंस होना चाहिए, तो मेरे ख्याल से वो टाइम गुजर चुका है, वो टाइम गुजर चुका है। देखिए चाइना की इन्वेस्टमेंट ऑलरेडी यहाँ पर आ चुकी है। उनका जो फ्लैगशिप प्रोग्राम है BRI का 60 अरब डॉलर से ज़्यादा की इन्वेस्टमेंट वाला प्रोजेक्ट है, वो टिका हुआ ही बेसिकली गिलगित बल्तिस्तान के ऊपर है। जो CPEC है स्टार्ट ही GB से होता है, गिलगित बल्तिस्तान से। आप गिलगित बल्तिस्तान को काट दें, आप आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर को पाकिस्तान से अलग कर दें तो चाइना की कनेक्टिविटी ख़त्म हो जाती है टुवार्ड्स गवादर पोर्ट। वो गवादर पोर्ट जो कि उनको अल्टरनेट रास्ता फराहम करता है स्टेट ऑफ मलाका को बाईपास करने का जंग की सूरत में, और पूरे के पूरे साउथ चाइना सी को भी बाईपास करने का, इंडियन ओशन को भी बाईपास करने का उनको ऑप्शन देता है। उनकी एनर्जी, उनका ट्रेड चलता रहेगा गवादर के जरिए। इवन इफ वो अगर फुल फ्लेज्ड जंगों में इन्वॉल्व होते हैं अमेरिका और जापान के साथ और इंडिया के साथ, तब भी उनका ट्रेड, उनकी एनर्जी चलती रहेगी CPEC के जरिए। तो CPEC स्ट्रेटेजिकली उनके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। आप अगर गिलगित पे आएंगे तो आप उनके $60 बिलियन के ऊपर इन्वेस्टमेंट के ऊपर बैठ जाएंगे और ये वो होने नहीं देंगे। तो ऑलरेडी एक बहुत बड़ा स्टेक उन्होंने क्रिएट कर लिया है, यहाँ पर चाइनीज ने कर लिया है गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर के ऊपर। वो तो हो गया ऑलरेडी, तो यू आर ऑलरेडी टू लेट बेसिकली, आप पहले से ही लेट हो चुके हैं। दूसरा ये कि सोशल इंजीनियरिंग, नाउ इंडियन कश्मीर के अंदर जो कुछ भी हो रहा है, आप कई 100 दिनों के कर्फ्यू लगाते हैं वहाँ पे। आपके मुल्क के अंदर हिंदुत्व के ठग जो हैं वो सरकार में बैठे हुए होते हैं। आपके मुल्क के अंदर मुसलमानों के खिलाफ जिस तरीके की कार्रवाइयाँ होती हैं, गाय का गोश्त खाना तो दूर की बात है, अगर कोई गाय ले भी जा रहा है उसको भी मार देते हैं मुसलमान को। तो आप कैसे एज्यूम करते हैं कि ऐसी सूरत हाल में आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर में और गिलगित के अंदर कोई प्रो इंडिया लीडर पैदा हो सकता है? वो क्या कहकर लोगों को जस्टिफाई करेगा कि हमें इंडिया के साथ क्यों होना चाहिए? पाकिस्तानी कश्मीर के अंदर मैं आपको बता दूं, पाकिस्तानी जम्मू एंड कश्मीर जो है, आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर जिसको बोलते हैं, इसका अपना प्राइम मिनिस्टर है, इसका अपना प्रेसिडेंट है, इसकी अपनी पार्लियामेंट है, इसका अपना फ्लैग है। आपने क्या किया कश्मीर के साथ? आपने चढ़ाई कर दी, बाहर से गैर कश्मीरी लाकर आप सेटल कर रहे हैं कश्मीर के अंदर, डेमोग्राफी तब्दील करने की कोशिश कर रहे हैं। पाकिस्तान के अंदर कश्मीर के ऊपर कश्मीरियों की हुकूमत है। तो समझ रहे हैं आप, ये आप जो कर रहे हैं ना, इससे आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर और गिलगित के लोग मजीद मुतनफ़र हो रहे हैं इंडिया से। उनको मजीद गुस्सा आ रहा है कि ये क्या कर रहे हैं हमारी ज़मीन के ऊपर, बाहर से क्यों लोग लेकर आ रहे हैं, सेटल कर रहे हैं। ये सारी चीज़ें पाकिस्तान में नोट की जा रही हैं कश्मीरियों की जानिब से, और उनको बड़ा गुस्सा है इंडिया के खिलाफ। लिहाजा पब्लिक लेवल पर कोई ऐसी जो लीडरशिप आप चाह रहे हैं ना कि कोई 1971 की तरह एंटी पाकिस्तान हो जाए, इस तरह नहीं हो सकता। यू आर टू लेट हेयर आल्सो। और तीसरी बात उन्होंने की कि जनाब आलमी हालात हमारे फेवर में होने चाहिए। तो आलमी हालात आपके फेवर में कैसे होंगे? ग्लोबल ऑर्डर जो है वो तो चाइना डोमिनेटेड बन रहा है। आप देखिए साउथ एशिया के अंदर चाइनीज आ गए ना, उनका रीजनल ऑर्डर बन गया, आसियान में चाइनीज का बन गया,
मिडल ईस्ट के अंदर चाइनीज का रीजनल ऑर्डर बन गया। यूरोप के अंदर यूरोप के जो बड़े बड़े लीडर्स हैं, मैक्रोन जर्मनी की जो चांसलर जर्मनी के वो स्पेन वाले, ये जा रहे हैं जनाब बीजिंग के अंदर यूक्रेन वॉर डिस्कस कर रहे हैं। तो वहां यूरोप के अंदर भी अमेरिका का जो बनाया हुआ रीजनल ऑर्डर था उसके अंदर क्रैक्स हैं। दुनिया डाइवर्ट हो रही है चाइना की तरफ। तो चाइना के ग्लोबल ऑर्डर के अंदर आप कैसे समझ सकते हैं कि आपके किसी स्ट्रेटेजिक एजेंडा के लिए कोई नैरेटिव बन पाएगा दुनिया के अंदर? कैसे? अब देखें ना, इसके लिए जरूरी है कि चाइना डाउन हो, अमेरिका ऊपर हो, आपका जो इत्तेहादी है वो ऊपर हो, उनका जो ग्लोबल ऑर्डर है वो बना रहे, तभी आपके लिए कोई फेवरेबल फिजा बन सकती है। लेकिन ऐसा तो नहीं हो रहा। दूसरा जो ग्रुप है, चाइना वाला ग्रुप, वो डोमिनेट होता जा रहा है दुनिया के ऊपर, तो आलमी फिजा भी आपके लिए नहीं बन रही। लिहाजा ये बिल्ली के ख्वाब में जो छीछड़े हैं ना, मेरे ख्याल से ये किसी काम के नहीं है। इट साउंड्स गुड फॉर द पब्लिक अपीजमेंट, भक्तों को खुश करने के लिए अच्छा आइडिया है, लेकिन प्रैक्टिकल नहीं है। बल्कि मैं आपको ये बता दूं कि ये जो इंडियन कश्मीर है इसके ऊपर संकट के बादल मंडला रहे हैं, और वो इसलिए क्योंकि लद्दाख जिसके ऊपर चाइनीज़ क्लेम है, चाइनीज़ कभी नहीं चाहेंगे कि उनके लद्दाख वाले बॉर्डर पर इंडियंस बैठे हुए हैं। वो यकीनी तौर पर चाहेंगे कि जो इंडिया का कश्मीर है वो भी पाकिस्तान की तरफ चला जाए, ताकि लद्दाख का जो बड़ा बॉर्डर है उनका, वहाँ पर उनको कम से कम रिसोर्सेज डिप्लॉय करने पड़े अगले कई डेकेड्स तक, में भी अगले 100 साल तक कम से कम उनको रिसोर्सेज डिप्लॉय करने पड़े, मिलिट्री रिसोर्सेज, और छोटा सा एरिया ऐसा हो जहां पर उनको इंडियंस को फेस करना पड़े। क्योंकि इंडिया अगर गिव अप भी कर देगा, हार जाएगा लद्दाख, तो भी उनका क्लेम तो रहेगा ना। जैसे अक्साई चिन, वो कब का हार चुके हैं, उन्होंने लड़ाई हुई थी और वो हार गए जंगों में, चाइना अक्साई चिन के ऊपर आ गया, लेकिन इंडिया का क्लेम तो है ना। तो ऐसे ही ये क्लेम रखेंगे ना लद्दाख के ऊपर, अगर उनके हाथ से निकल भी गया। लिहाजा चाइनीज डेफिनेटली चाहेंगे कि इलीगली इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर जो है उसके ऊपर पाकिस्तानी आ जाए। अगर फ्यूचर में कभी वो ग्रो भी करते हैं, मिलिटरली कोई फोर्स ही बनते हैं, तो उनको सिर्फ हमसे नहीं पाकिस्तानियों से भी लड़ना पड़े एट द सेम टाइम। और पहले वो इलीगली इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर का जो इलाका है उसको बाजियाब कराएं, फिर लद्दाख की तरफ आए। तो वो बफर जरूर क्रिएट करने की कोशिश करेंगे। तो आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर भूल जाए, जो इलीगली ऑक्यूपाइड कश्मीर है उस पर नजर रखें, वो इंडिया के हाथ से खसक सकता है फ्यूचर में।